Hallelujah. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Blood of Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, holy blood of the Lamb. Thank you, holy blood of the Lamb. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. 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 Blood of Jesus. Blood of Jesus. Blood of Jesus. Blood of Jesus of Nazareth. Blood of Jesus of Nazareth. Hallelujah. Thank you, Jesus. Holy blood of the Lamb. Holy blood of the Lamb. Holy blood. 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 Hallelujah. Blood of Jesus. Thank you, Jesus. आइए सब मिलके प्रार्थना करें. हालेलुया. हालेलुया. सब मिलके कुछ समय प्लीज़ प्रार्थना कीजिएगा हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए. सभी प्लीज़ आत्मा में प्रार्थना कीजिए. यीशु मसीह के लहू की कुदरत को खोलिए. विश्वास से एंजल्स को खोलिए. हीलिंग कवनेंट को रिलीज़ कीजिए. हीलिंग कवनेंट चंगाई देने का, चंगाई की वाचा है परमेश्वर की हमारे साथ. उस वाचा को यीशु मसीह के नाम में रिलीज़ करें. हालेलुया. धन्यवाद यीशु मसीह. तेरे लहू की कुदरत को हम खोलते हैं. तेरे पवित्र लहू की कुदरत को खोलते हैं. तेरे पवित्र लहू की कुदरत को, तेरे पवित्र लहू की कुदरत को, तेरे पवित्र लहू की कुदरत को, लहू की कुदरत को, लहू की कुदरत को, लहू की कुदरत को. हालेलुया. 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 तेरे पवित्र लहू की कुदरत को खोलते हैं. लहू की कुदरत को खोलते हैं. तेरे पवित्र 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 लहू की कुदरत को खोलते हैं. तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हो. हालेलुया. प्लीज़ intercede for us for few minutes. Intercede for me, my wife, my children, my whole family, our loved ones. Please invoke the healing anointing in the name of Jesus. Please invoke the name of Yahuwah Rapha, the Lord who heals all our diseases, and the Lord who pardons all our iniquities, the Lord who crowns us with loving kindness and tender mercy, the Lord who redeems a soul from the pit. Hallelujah. The Lord who satisfies our mouth with good things so that our youth is renewed like eagle. Hallelujah. धन्यवाद प्रभु. तेरे लहू की जय, लहू की जय. पवित्र पवित्र लहू की जय, लहू की जय. Hallelujah. Hallelujah. Father, in Jesus' name, I draw the hedge of the blood of Jesus around me, my wife, my children, our household, Lord. I draw the hedge of the blood of Jesus. Lord, I ask your angels to be unleashed. The hedge of the angels, Lord, the battalion of the angel,
The angel of the Lord encamps around the righteous. The angel of the Lord makes a cantonment around the people who fear the Lord. So Lord, I pray for that encampment. Father, I pray for that brigade of the heavenly armies to be released in the name of Jesus. Hallelujah. We bless you, Father. We bless you, Father. Bless you. Healing is a purchased reality. Lord, healing is a covenantal reality. Hallelujah. You are Yahuwah Rapha, the Lord who heals us. You are Yahuwah Rapha, the Lord who heals us. Lord, one of your multiple names is the healing name. So I release your name, Yahuwah Rapha, around our family, Lord, that the healing unction will begin to flow, begin to permeate even the deeper parts of a persona, Lord, that the healing anointing will sink into our DNA. Hallelujah. Into a genetic code, Lord, into the genetic code of my wife, into the genetic code of my body and my children and our two mothers, mother-in-law and mother, Lord, and even my brother's household, Lord. That healing unction will permeate in the name of Jesus. In the mighty, holy, precious name of Jesus of Nazareth. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Blessed be your name. Blessed be your name. Blessed be your name. Blessed be your name. Blood of Jesus. Blood of Jesus. Father, I release the blood of Jesus. सभी मिलके प्रार्थना करें. Everybody join. Everybody join with one accord, one mind, one spirit. Let's all pray for my family, myself, our household. Let's release the healing anointing all around us. Jesus said, if two of you shall agree touching anything, if just two of you shall agree touching anything, it shall be done of my Father in heaven. Hallelujah. Jesus said, wherever two or three are gathered in my name, hallelujah, there am I in their midst. Jesus said, ask, my Father will give you, so that your joy may be full. Hallelujah. Let's all pray, everybody, wherever you are have joined me, different parts of the world, please join me in the spirit realm right now, touching the precious name of Yahushua HaMashiach. That healing anointing is poured out like a mighty stream over my household. Hallelujah. Father, in the name that is above every name, let healing begin to percolate now into my wife's body, into my children's bodies, into our elderly mothers, and even in brother's family, into my body, into a genetic code. Let the healing virtue begin to flow. Father, thank you that darkness is defeated. Thank you that light has already conquered. Thank you, Lord, that there is healing bought for us by the scourging of Jesus of Nazareth. We were spiritually healed and we were physically healed by the wounds of Jesus of Nazareth. Thank you that by the wounds of Jesus we have been made whole. Thank you that by the wounds of Jesus we have been made whole. यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं. यीशु मसीह की स्कर्जिंग के द्वारा हमारी देन रोई हुई है. यीशु मसीह की स्कर्जिंग की कुदरत को मैं खोलता हूँ. यीशु मसीह के कोड़ों की कुदरत को मैं खोलता हूँ. यीशु मसीह की स्कर्जिंग की पावर को रिलीज़ करता हूँ. यीशु मसीह के कोड़ों की सामर्थ, यीशु मसीह के बदन पे पड़े कोड़ों की कुदरत रिलीज़ हो जाए. यीशु मसीह नासरी के जिस्म पे पड़े पवित्र जिस्म पे पड़े कोड़ों की कुदरत रिलीज़ हो जाए. यीशु मसीह के पवित्र शरीर पे पड़े कोड़ों की कुदरत सामर्थ अभी रिलीज़ हो. हालेलुया. तेरा धन्यवाद हो प्रभु. हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं. तू हमारा छुड़ाने वाला है खुदावंद. तू हमारा बचाने वाला है. बहेलिए के जाल से हमें छुड़ाता है खुदावंद. हालेलुया. शैतान की कैद से तू हमें रिहाई देता है.
तू शैतान की कैद से रिहाई देता है, बहेलिए के जाल से छुड़ाता है। यीशु मसीह तू जिंदा परमेश्वर अपने लोगों की सुधि लेता है। तेरे दूत हमारे लिए काम करते हैं खुदावंद, क्योंकि हम हालेलुया नजात के वारिस हैं, मुक्ति के वारिस हैं। वी आर द वन हु विल इनहेरिट द किंगडम। Therefore, Lord, the angelic being continually work on behalf of your people. Thank you that the domain of darkness shall never prevail. Thank you, Lord, that the domain of darkness is crushed and decimated, Lord God. Hallelujah. प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरे लहू की जय हो, तेरे पवित्र लहू की जय हो, तेरे पवित्र पवित्र लहू की जय हो, तेरे पवित्र पवित्र लहू की जय हो, तेरे पवित्र लहू की जय हो, तेरे पवित्र खून की जय हो। यीशु मसीह तेरे पवित्र खून की जय, यीशु मसीह तेरे पवित्र सामर्थी खून की जय, तेरे पवित्र सामर्थी खून की जय। हम मिलके तेरे नाम का झंडा ऊंचा करते हैं, मिलके तेरे नाम की चंगाई की घोषणा करते हैं। विश्वास के साथ प्रभु चंगाई को हम ग्रहण करते हैं, विश्वास के साथ छुटकारे को ग्रहण करते हैं, तेरे कोड़ों की कुदरत को हम ग्रहण करते हैं। लॉर्ड, बाय फेथ we receive, by faith, Lord. We thank you, Lord, that we have been made whole, that we have been healed by the wounds of Jesus. Thank you, Lord, that we have been healed by the wounds of Jesus. Thank you, Lord, that we have been healed by the wounds of Jesus. Thank you, Lord, that we have been healed by the wounds of Jesus. Thank you, Lord, that we have been healed by the scourging of Jesus. Thank you, your angels are all around our house, our dwelling place. Your angelic beings are here, Lord. Hallelujah. Lord, your angels are here. Lord, there is your presence, there is righteousness, joy and peace in the Holy Spirit. Righteousness, joy and peace in the Holy Ghost. Righteousness, joy and peace in the Holy Ghost. That is the kingdom of God. The kingdom of God is righteousness and joy and peace in the Holy Spirit. Hallelujah. Lord, we thank you that we have been made righteous by the righteous and holy blood of Jesus. Lord, we have been made righteous. We have obtained righteousness as a stature, as a statue, as a state, Lord, in which we have a relationship with you. Thank you, Father, that this is the righteousness of Jesus. Lord, we live not by our own righteousness, for we have none of our own. We live by the righteousness of Jesus of Nazareth. Hallelujah. यीशु मसीह की धार्मिकता, यीशु मसीह तेरी धार्मिकता के लिए तेरा धन्यवाद। यीशु मसीह तेरी राइचियसनेस के लिए तेरा धन्यवाद। तेरी राइचियसनेस खुदावन तू हमें देता है, तेरी राइचियसनेस खुदावन तू हमें देता है, तेरी राइचियसनेस खुदावन तू हमें देता है। तेरा धन्यवाद खुदावन, तू हमें राइचियस बनाता है अपनी सलीबी मौत के द्वारा, अपने पवित्र खून के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु क्रूस के द्वारा तू हमें राइचियस बनाता है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन तेरे लहू की जय हो, तेरे पवित्र लहू की जय। खुदावन तेरी चंगाई के लिए, तेरी सामर्थ के लिए खुदावंद, हालेलुया, हमें नया करने के लिए तेरा धन्यवाद। तेरी प्रतिज्ञा के लिए, तेरी वाचा के लिए तेरा धन्यवाद। तू हमें कभी भूलता नहीं खुदावंद, हमें स्मरण करता है। तेरी आंखें हमारी ओर लगी रहती हैं खुदावंद, तेरा धन्यवाद हो। तेरी आंखें हमें निहारती हैं। तूने हमारी शक्ल को अपनी हथेली में खोद के बनाया है, और हाँ, तेरी आंखें हमारी शहरपनाह पे लगी हैं खुदावंद। हम तेरी स्तुति करते हैं खुदावंद, तेरे नाम की महिमा करते हैं खुदावंद, तुझे सजदा करते हैं, तुझे जलाल देते हैं यीशु नासरी। हल्लेलुया, तुझे जलाल देते हैं खुदावंद। हल्लेलुया, हम तुझे जलाल देते हैं, हम तुझे जलाल देते हैं। हल्लेलुया, तेरी महिमा करते हैं। हल्लेलुया, तेरी महिमा करते हैं। हल्लेलुया, तेरे नाम को जलाल देते हैं। हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया। तेरा धन्यवाद खुदावंद। मैं प्रार्थना करता हूँ देविंदर कुलर के लिए और उनके हस्बैंड प्रेम, मिस्टर प्रेम के लिए।
खुदावन तेरे खून को छिड़कता हूँ मैं, तेरी चंगाई के रूह को खोलता हूँ उनके घराने के ऊपर खुदावन। मैं हरजीत सिंह के लिए, उनकी पत्नी रजनी के लिए दुआ करता हूँ, तेरा खून छिड़कता हूँ खुदावन। डोरथी थापा के ऊपर तेरा खून छिड़कता हूँ। साहिल के पिता जो पाकिस्तान में, उन पे तेरा खून छिड़कता हूँ। मीनू सूद और उनके घराने पे तेरे लहू को छिड़कता हूँ। अनीता रानी के ऊपर, उसके ख़ानदान घराने को तेरे खून में छिपाता हूँ खुदावंद। अंजू मसीह को, जो ब्रिटेन से तेरी बेटी, उसके ऊपर तेरा लहू छिड़कता हूँ। उसके घराने, उसके ख़ानदान को तेरे खून में छिपाता हूँ खुदावंद। हालेलुया प्रभु, तेरे नाम की महिमा हो। डेजी वीएस को अपने लहू के साए के नीचे रख। लॉर्ड ब्लेस हर, लॉर्ड पुट योर nail scarred hand over her life in the name of Jesus. And Lord, I pray for Angela Droch. Put your nail scarred hand over her life. I speak your blessing and anointing and your favor over her life, Lord. And I pray for Sunita Kaur, that you would minister to her, that you would bless her, Lord, in the mighty name of Jesus. Lord, bless Anita Rani and her household, I pray thee in the name of Jesus. And I pray, Father, for Wrinkle Gaba Kathuria, for her household. May you bless her household, bless her siblings, Lord, I pray thee. I pray for Bobby Art and his siblings, brothers, and other brother who is a pastor. Speak your anointing, blessing and favor, Lord Jesus. I pray for Samina Ashraf, for your hand, for your blessing to rest upon her. Lord, bless Sunita Nar, light of Jesus. May your hand be upon her. I pray in the name of Jesus of Nazareth. Hallelujah. Lord, bless Brother Raman and Brother Raman's household. Bless this gentleman, Lord. May your hand be upon him. Over Bishop Sandeep, Lord, I speak blessing and anointing and favor. Over Gurdeep Singh, Lord, over others who are online, I speak your blessing, Lord. Over Amarjeet Kaur, over her household, I speak your blessing. Over, Lord, Harpal Singh Bajwa and his household, I speak the blessing of the Lord. Hallelujah. Thank you. तेरा धन्यवाद हो। अमरीश कुमार भाई को खुदावंद अपने लहू में छिपा। खुदावंद, तूने बच्ची की ब्लेसिंग दी खुदावंद, प्रेशियस डॉटर की, तेरा धन्यवाद हो। तेरी आशीष हो इनके ख़ानदान के ऊपर खुदावंद। हालेलुया। धन्यवाद हो, तेरे लहू की जय हो खुदावंद। तेरे पवित्र 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 लहू की जय हो प्रभु जी। मैं और भी तेरे लोगों की प्रार्थना विनतियों को तेरे आगे उठाता हूँ। Lord, there may be other prayer requests, Lord, that your people haven't spoken. Brother Ravi Prakash Gupta and his household, Lord. Lord, whatever concerns they have, burdens they have in their soul, Lord, I pray that you bless these people, Lord. Hallelujah. तेरा धन्यवाद हो खुदावंद। तू हमारी ढाल है, तू हमारी चट्टान है, तू हमारी पनाह है खुदावंद, तू हमारी जान का किला है। तेरा धन्यवाद हो, तेरी महिमा हो खुदावन। Hallelujah. Lord, bless each and every one. Sunita Guria Kansavar, may the hand of the Lord bless. May the hand of the Lord bless Dorothy Thapa. We give you praise, Lord. Hallelujah. मैं आपसे परमेश्वर के वचन में से कुछ बताना चाहता हूँ। हीब्रूज चैप्टर 11 निकालिए, इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय। हीब्रूज 11। हीब्रूज 11 हालेलुया। इब्रानियों 11 में हम देखते हैं
दिस इज द हॉल ऑफ फेम, हॉल ऑफ फेमर्स। जितने परमेश्वर के संत अद्भुत दास हुए, परमेश्वर के प्रिय पुत्र और पुत्रियां हुए, जिनको परमेश्वर ने अपना दर्शन दिया, जिनसे परमेश्वर ने बातें की, जिनको परमेश्वर ने अपना कलाम दिया, अपने दर्शन दिए, जिनके द्वारा परमेश्वर ने पृथ्वी में काम किया। 11 अध्याय में वो सब महान लोग हैं जिनको परमेश्वर ने अद्भुत दर्शन, अद्भुत योजनाएं, अपने अद्भुत काम करने के लिए जगत में बुलाया। उन विश्वास के योद्धाओं के सबके जीवन के विषय में, चरित्र के विषय में 11 अध्याय में लिखा है। बहुत अद्भुत है 11th चैप्टर। मैं आप लोगों से ये विनती करता हूँ, हीब्रूज़ 11 को बहुत बढ़िया ढंग से, कैलीग्राफिक ढंग से लिख के अपने घर में लगाइए। ये जो डार्कनेस का समय पृथ्वी पे चल रहा है, ये सफरिंग का, पेन का, प्लेग का समय चल रहा है, इस समय आप हीब्रूज़ 11 के ऊपर मनन करें, अपने घर में लिख के लगाएं। अगर आप चाहें तो हीब्रूज़ 11 की छोटे छोटे कार्ड्स बना सकते हैं। हीब्रूज़ 11 में 39 वर्सेस हैं, 39 कार्ड बना लीजिए, किसी चीज़ के ना, कागज़ के, थोड़ा थिक कागज़ के 39 छोटे छोटे कार्ड काट के बनाइए। उनके ऊपर इब्रानी, हीब्रूज़ 11 1 से लेके 39 वर्सेस लिखिए। इन सबको याद कीजिए, कार्ड भी बना के रखिए ताकि आप याद कर लें। फिर आप इनको लिख के बढ़िया ढंग से अपने घर में चिपका के रखें जगह जगह, और दिन भर में इस पे मनन करें। हीब्रूज़ 11 पे मेरे को प्रभु ने मेरे दिल में डाला कि ऐसा करने से लोगों का विश्वास दृढ़ होगा, लोगों को अंधकार में ज्योति दिखाई देगी, लोगों को चंगाई मिलेगी, छुटकारा मिलेगा, और परमेश्वर की सामर्थ अद्भुत रीति से आपके जीवन में काम करेगी। इसे पढ़िए, हीब्रूज़ 11 को पढ़िए, एक दिन में 10 बार पढ़िए, इसको मेमोराइज़ कीजिए। हीब्रूज़ 11 की 39 वर्सेस लिख लीजिए, छोटे कार्ड बनाइए इसके। हीब्रूज़ 11 1 वर्स लिखें, 2 3 4 5 अपने पास रखें, जेब में रखें, इनको रट लें, स्मरण करें। तो इसके अंदर हीब्रूज़ 11 में पहले वचन में लिखा, नाउ फेथ इज, नाउ फेथ इज, हालेलुया। सबसे पहला वर्ड इंग्लिश में है नाउ। एक इटर्नल नाउ है। अब विश्वास, नाउ, राइट नाउ। स्वर्ग के राज्य में एक इटर्नल नाउ है। स्वर्ग का राज्य कभी भी पास्ट नहीं है। परमेश्वर हमेशा आपको इटर्नल नाउ में मिलेगा। नाउ, अब, नाउ इज द डे ऑफ साल्वेशन। आज, अभी मुक्ति का दिन है, आज अभी छुटकारे की घड़ी है, हालेलुया। ये जो इटर्नल नाउ है, फेथ जो है, ईमान जो है, विश्वास जो है, वो हमेशा इटर्नल नाउ में ऑपरेट करता है। इटर्नल नाउ। जब भी आप आत्मा की दुनिया में जाएंगे, वहां पे नाउ है इटर्नल। इट इज अ डे फॉर एवर, बिकॉज इट्स इटर्निटी इन द रेल्म ऑफ द स्पिरिट, हालेलुया। तो विश्वास क्या करता है? विश्वास आपको इटर्नल नाउ के संग जोड़ता है। इटर्निटी में, परमेश्वर के हुजूर में आप जाएंगे तो एक ही दिन चल रहा है वहाँ पे, अरबों सालों से एक दिन ही चल रहा है। इट्स अ ब्यूटीफुल डे, इट्स इटर्निटी, टाइम इज नो मोर देयर। तो उस रेल्म में आपको, उस दुनिया में आपको लेके कौन जाता है? फेथ। आपको मालूम, फेथ के लिए ग्रीक वर्ड है पिस्टिस, PISTIS। पिस्टिस इन ग्रीक मीन्स फेथ। हिब्रू वर्ड है इम्यूना, विश्वास के लिए, लेकिन ग्रीक वर्ड विश्वास के लिए है पिस्टिस। और आप हैरान होंगे, पिस्टिस का मतलब है इट हैज़ ऑलरेडी हैपन्ड।
पिस्टिस इज अ पास्ट टेंस, ये हो चुका है, इसका मतलब ये हो चुका है, इट इज ऑलरेडी डन, इट इज ऑलरेडी एक्टिवेटेड। तो यहां पे पहली वचन कितना अद्भुत है, नाउ फेथ इज, नॉट फेथ वॉज नॉर फेथ विल बी, फेथ इज नाउ, अब इटर्नल नाउ में फेथ आपको जोड़ रहा है। और क्या है, सब्सटेंस ऑफ द थिंग्स होप्ड फॉर, जिन चीज़ों की आपने आशा रखी है उन चीज़ों का सब्सटेंस आपकी आत्मा में क्रिएट करेगा फेथ। अभी आपको वो चीज़ें मिली नहीं हैं, आपने वो वायदे पाए नहीं, आपको वो करारनामे मिले नहीं, आपको परमेश्वर के वो प्रॉमिसेस आपकी झोली में गिरे नहीं अभी, लेकिन जो फेथ है उसने आपको इटर्नल नाव में आपको ट्रांजिशन कर दिया है, आपकी स्पिरिट इटर्नल नाव में ट्रांजिशन हो गई है। तो आपको सबसे पहले क्या मिला है एज अ गारंटी, सब्सटेंस, आपकी स्पिरिट में सब्सटेंस आ गया है। अभी ब्लेसिंग आई नहीं लेकिन सब्सटेंस पहले आ गया है। होप्ड फॉर एंड द एविडेंस ऑफ द थिंग्स नॉट सीन, दो चीजें आपको फेथ आपकी आत्मा में रिलीज कर रहा है। एक तो है सब्सटेंस जो अनसीन है, जो अभी दिखाई नहीं दे रही, जो अभी मिली नहीं, जो अभी आपने रियलाइज नहीं की, जो अभी आपकी झोली में नहीं गिरी बरकत, उसका सब्सटेंस मिल गया आपको, एक कण आ गया उसका आपकी आत्मा में कि ये हो गया। और फिर दूसरी चीज़ क्या आई, एविडेंस। हालेलुया। परमेश्वर आपके इंटेलेक्चुअल माइंड को भी अपील कर रहा है, परमेश्वर आपकी स्पिरिट डिमेंशन को भी एड्रेस कर रहा है, दोनों चीज़ें हैं। एविडेंस आपकी इंटेलेक्चुअल क्वेस्ट के लिए एविडेंस चाहिए, और आपकी स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन के लिए सब्सटेंस चाहिए, स्पिरिचुअल सब्सटेंस। तो परमेश्वर दोनों आपको सप्लाई कर रहा है। कैसे हो रहा है ये भाई और बहनों, सुपर नेचुरल विश्वास के द्वारा। ये विश्वास जिसका यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है, ये विश्वास हम अपने आप से पैदा नहीं करते, ये विश्वास हमारे अंदर से खुद नहीं पैदा हुआ है। ये विश्वास यहोवा परमेश्वर ने कृपा करके, करुणा करके, दया करके दान रूप में हमें दिया है। हर एक को ये मिला है, मेजर ऑफ फेथ मिला है सबको। ये परमेश्वर ने अपनी दया से, गॉड because of his mercy and grace has imparted unto each one of us a magnitude of faith. It is already delivered inside us. तो ये फेथ दो चीज़ें पैदा कर रहा है, एक तो आपकी इंटेलेक्चुअल माइंड के लिए एविडेंस पैदा कर रहा है, और दूसरा आपकी स्पिरिट बीइंग, स्पिरिचुअल डिमेंशन के लिए सब्सटेंस पैदा कर रहा है। हालेलुया। तो ये पूरा आपने 11 अध्याय बोल बोल के पढ़ने हैं। तो इस समय जो अंधकार शैतान लेकर आ रहा है ना, कोरोना वायरस की वेक में, ये सारा भागेगा जब लोग ये वचन को प्रभु के बोल बोल के पढ़ेंगे, अपने घर में लगा के रखेंगे। हालेलुया। मैं आपको कुछ खास बातें बताने जा रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के कलाम में से, इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय में से, मैं इसका वचन नंबर 7 लीजिए, इब्रानियों 11 का 7। देखें क्या लिखा है यहाँ पे। यहाँ पे लिखा है, मैं 11 का 7 से नहीं, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। सबसे पहले 11 का 4 पढ़ता हूँ, सुनिए। इब्रानियों 11 का 4। बाय फेथ एबल ऑफर्ड अनटू गॉड ए मोर एक्सेलेंट सैक्रिफाइस देन केन, बाय विच ही ऑब्टेन्ड विटनेस दैट ही वॉज राइचस, God
testifying of his gifts, and by it he being dead yet speaketh. Hallelujah. हाबिल ने यहोवा के आगे सिन ऑफरिंग लेकर आया। हाबिल, उसने जानवर को, चुनिंदा जानवरों को कुर्बान किया, उनकी फैट बर्न्ट ऑफरिंग करके दी, उनका ब्लड यहोवा को ऑफर किया। उसने परमेश्वर के आगे क्या अंगीकार किया? हाबिल ने परमेश्वर के आगे ये माना कि हे परमेश्वर, मैं पापी हूँ, हे परमेश्वर, मुझे आपकी क्षमा की ज़रूरत है। वो दीनता के साथ हलीम होकर परमेश्वर के आगे गया और उसने सिन ऑफरिंग चढ़ाई, फैट बर्न्ट ऑफरिंग करके चढ़ा दी। वो परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की दया का पात्र बना। उसने यहोवा के आगे अपने आप को झुकाया और ये कहा कि यहोवा, मेरे अच्छे काम, मेरे भले काम, मेरी अपनी खूबी मुझे बचा नहीं सकती, मुझ पे दया कर। इसलिए मैं बर्न्ट ऑफरिंग लेकर आया हूँ, जलाने वाली भेंट, और लहू की भेंट लेकर आया हूँ, जिस लहू के द्वारा मेरे पाप ढांप दिए जाएं। लेकिन कैन ने क्या किया? कैन की ऑफरिंग के लिए, भेंट के लिए हिब्रू वर्ड है मिनकाह। आपको मालूम, मिनका बाइबल में जितनी ऑफरिंग होती हैं, मोस्टली 80% ऑफरिंग को यूनानी, ग्रीक, हिब्रू भाषा में, पुराने नियम में मिनका कहा जाता था। मिनका का मतलब भेंट, ऑफरिंग, मिनका। आप देखते हो ना कई चर्च के अंदर, वहाँ पे लिखा होता है, जाते हो आप, वहाँ लिखा होता है दान पात्र, चंदे दा बक्सा। देखिए, ये शब्द बहुत ही अजीब किस्म के शब्द हैं। आप परमेश्वर को दान नहीं दे सकते। मालूम आपको, आप उसको दान देते हो जिसकी हैसियत आपसे कम होती है। परमेश्वर को आप दान नहीं दे सकते। समझ रहे हैं आप मेरी बात? आप मान लीजिए अपने देश के सबसे अमीर आदमी के घर जाएं और उनका डोर खटखटाएं और सुबह अर्ली मॉर्निंग वो डोर खोले और आप कहें मैं आपको दान देने आया हूं, तो वो रिच आदमी आपको भगा देगा, उसके नौकर। लेकिन अगर आप उनके घर जाएं, एक बॉक्स को अच्छी तरह रैप करें और आप डोर खटखटाएं और दीनता से कहें मैं आपको गिफ्ट देने आया हूं, तो वो अवश्य लेंगे। परमेश्वर को आप गिफ्ट देते हो। हिब्रू वर्ड है मिनका। मिनका का मतलब चंदा नहीं होता, मिनका का मतलब दान नहीं होता कभी भी। बाइबल में जितने हिब्रू या ग्रीक वर्ड हैं, उनमें से किसी का मतलब भी चंदा या दान नहीं है। फिर भी लोगों ने चर्च में भी लिख के लगाया होता दान पात्र, चंदा ले लें। ये भाई, चंदा, यदि कोई व्यक्ति मर जाता है ना, कहीं लवारिस होता है, जब कोई आदमी मर जाता है तो उस पर कफन डालने के लिए या उसका अंतिम संस्कार करने के लिए लोग चंदा इकट्ठा करते हैं। परमेश्वर को आप भेंट देते हो, परमेश्वर को आप तोहफा देते हो, परमेश्वर को आप नजराने देते हो, परमेश्वर को आप गिफ्ट देते हो, परमेश्वर को आप टाइद देते हो। परमेश्वर को आप कभी भी चंदा नहीं देते या दान नहीं देते। यहाँ पे हिब्रू वर्ड है मिनका। कैन यहोवा को मिनका दे रहा है। मिनका का मतलब क्या है? मिनका का मतलब है रिचुअलिस्टिक ऑफरिंग है, जो रिचुअलिस्टिक ऑफरिंग, शुक्रगुजारी की भेंटें, वो परमेश्वर को चढ़ा रहा है। और कैन परमेश्वर को वो भेंट चढ़ा रहा है जो ज़मीन से निकल रही है। और ज़मीन में से जो निकल रहा है, जो पैदा हो रहा है, वो सब ऑलरेडी श्राप के नीचे है, क्योंकि परमेश्वर ने आदम से कहा हे आदम, तेरे कारण पृथ्वी श्रापित हुई। तो श्रापित पृथ्वी का फल कैन यहोवा को चढ़ाता है। कैन की भेंट में घमंड है, अहंकार है, दिखावा है। कैन अब सेल्फ राइचस है। कैन को क्षमा की ज़रूरत नहीं है, कैन को तौबा की ज़रूरत नहीं है। आज भी कैन का प्रचार हो रहा है बहुत ज़्यादा चर्चेस के अंदर। कैन सरीखे पासवान हैं और प्रचारक हैं जो कैन की थियोलॉजी का प्रचार कर रहे हैं। वचन में लिखा है कैन का मार्ग उन्होंने लिया। यहूदा अपनी पत्री में लिखता है
बिलाम का मार्ग, कैन का मार्ग और कोरा का मार्ग, ये 3 विनाश के मार्ग हैं। तो कैन की कुर्बानी में लहू नहीं है, कैन की कुर्बानी में जानवर का ब्लड नहीं जो उसके पापों को ढांक सके, इसलिए उसकी कुर्बानी ग्रहण नहीं हुई। हाबिल ने विश्वास से परमेश्वर को भेंट चढ़ाई। हाबिल की कुर्बानी में लहू है। हाबिल की कुर्बानी स्वर्ग के परमेश्वर को पुकार पुकार के कह रही है, परमेश्वर केवल बर्रे का खून, परमेश्वर केवल तेरे मेमने का लहू हमें बचा सकता है। हमारे अच्छे भले काम, हमारे बढ़िया से बढ़िया गिफ्ट भी तुझे प्रसन्न नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर हम कुछ भी तुझे, हम इनसफिशिएंट हैं, कुछ भी तुझे अर्पण क्यों ना करें, हम टोटली इनसफिशिएंट, इनकेपेबल है। परमेश्वर तू लहू के द्वारा हमारे ऊपर दया कर। इसलिए कैन की कुर्बानी ग्रहण हुई, कैन की ग्रहण नहीं हुई और हाबिल की कुर्बानी ग्रहण हुई। और हाबिल ने लिखा है विश्वास से यहोवा को उत्तम बलिदान चढ़ाया। सबसे पहली बात विश्वास के विषय में जो लिखी है, विश्वास के द्वारा हम यहोवा को उत्तम बलिदान चढ़ाते हैं, घमंड के मार्ग से बचते हैं, सेल्फ राइचियसनेस के मार्ग से बचते हैं और परमेश्वर के आगे हलीम होके, दीन होके आते हैं और केवल यीशु मसीह के क्रूस के संग लिपटते हैं, केवल यीशु मसीह के क्रूस पे विश्वास करते हैं। हालेलुया। फिर हम पढ़ते हैं इसका 5 वचन, बाय फेथ इनॉक वॉज ट्रांसलेटेड। अब दूसरा व्यक्ति है हनूक। हनूक को परमेश्वर ने क्या किया? उठा लिया। सबसे बड़ी खासियत क्या है लिखी यहाँ पे? इनॉक वॉक्ड विद गॉड। हनूक परमेश्वर का संत हनूक परमेश्वर के संग संग चला। हनूक परमेश्वर के संग संग चला 300 साल। हालेलुया। वो ही केवल अपनी जनरेशन में उठाया गया, उसने मौत का मुंह नहीं देखा। केवल एक व्यक्ति अपनी जनरेशन में बिना मौत का मुंह देखे स्वर्ग उठा लिया गया। फिर लिखा ही कुड नॉट बी फाउंड बिकॉज गॉड हैड ट्रांसलेटेड हिम। उत्पत्ति 5 अध्याय के 21 से 23 वचन को पढ़िएगा। यहोवा परमेश्वर ने उसे ट्रांसलेट कर लिया, उठा लिया। हालेलुया। आपको मालूम, उसको स्वर्ग में रहते हुए लगभग 5,500 साल हो रहे हैं। अगर आप टाइम कैलकुलेट करेंगे, ऑलमोस्ट 5,400 ईयर्स हो रहे हैं हनूक को स्वर्ग में रहते हुए। उत्पत्ति 5 का 22, जकरिया 4 का 11 से 14 और रेवलेशन 11 का 4 पढ़िएगा। हालेलुया। और शायद वो प्रकाशित वाक्य और उसके 11 अध्याय के 3 से 11 वचन में जो 2 गवाह हैं, शायद उनमें से एक वही है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो हम देखते हैं कि कितनी अद्भुत बातें हैं इन विश्वास के योद्धाओं की। अगला जो कैरेक्टर है वो है नूह। नूह के विषय में हम पढ़ते हैं हिब्रूज 11:7, इब्रानियों 11 का 7। बाय फेथ नोआ बीइंग वार्न्ड ऑफ गॉड of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house, by which he condemned the world and became heir of righteousness which is by faith. कौन सी धार्मिकता का वारिस बना? नूह उस धार्मिकता का वारिस बना जो बाय फेथ है, विश्वास के द्वारा है। तो उसने क्या किया? सबसे पहले
यहोवा ने उसको वार्निंग दी, 100 साल से भी पहले बता दिया परमेश्वर ने कि पृथ्वी का अंत आ गया है, और उसे 100 साल से ज़्यादा समय दिया एक आर्क बनाने के लिए, और वो अकेला अपनी फैमिली के साथ मिलके आर्क बनाता रहा। परमेश्वर ने उसको वार्न किया कि पृथ्वी पे क्या होने वाला है, और जब परमेश्वर ने उसको वार्न किया, उसका हार्ट जो था वो डर से भर गया, परमेश्वर की पवित्र डर से, पवित्र फियर से, और वो परमेश्वर के भय में चला, और उसने उसी समय आर्क बनानी शुरू कर दी। उसने उस आर्क को बनाया अपने लिए और अपने परिवार के लिए। और क्या कहता है परमेश्वर का कलाम? उसने दुनिया को कंडेम कर दिया। ही कंडेम्ड द वर्ल्ड। जेनेसिस, उत्पत्ति 8-6 अध्याय के 6 अध्याय के 8 वचन से पढ़िए, और जेनेसिस 8 के 19 से पढ़ें, और 1 पीटर 3:20। Noah, since he believed God, and as he was warned by the Spirit of the Most High, he took God's word at face value, and he began to build an ark that may have sounded an absolutely ridiculous thing. Did you know that the time when God said that there will be a massive flood, it never even ever rained on the earth? जब खुदावन ने नूह से कहा ना कि फ्लड आ रहा है, मासिव फ्लड, वर्ल्ड वाइड फ्लड, तब तक कभी बारिश भी नहीं पड़ती थी। लोगों को मालूम ही नहीं था कि रेन क्या होती है। इमेजिन, परमेश्वर ना सिर्फ रेन बता रहा है, परमेश्वर बता रहा है मासिव फ्लड आ रहा है। तो तब तक नूह के टाइम तक लोगों ने कभी बारिश भी नहीं देखी थी। Just imagine how difficult it was for Noah to believe that there is going to be a great flood that will sweep the entire face of the earth, and the whole mankind will vanquish, and God will decimate every living being from the face of the earth. That only those who will come up on the ark that Noah was going to build will survive. Rest all will die. Could anybody dare to believe such a phenomena? Wasn't this absolutely ridiculous thing? Would not people be mocking at Noah when he consistently, for the space of over 100 years, nearly 120 years, he kept building the ark? Were not people considering Noah an absolute fool? Were not his sons and their families, sometime or the other mocking at their own father? Just imagine how daunting task he had at his hands, and how would he be able to really explain his faith, the encounter that he had with God, the oracle. In those days there was no Bible, there was no church or Sanhedrin, there was no written record of God. There were no written narratives, that somebody could quote, well, this is written in that book, or this is written in that book. And there were no testimonies. There were no great people of God who could stand up and bear a testimony. And God would speak directly from heaven, like in a thunderclap or in a thunderbolt. जैसे आकाशवाणी बोलते हैं, आकाशवाणी में आवाज़ आती थी। तो कल्पना करें, 120 years he continually kept on building the ark, and as he was building the ark, he was condemning the sinful world. Just imagine, one preacher, whole mankind mocking at him. They would say, well, we never even ever heard of the idea of rain. You are talking about a massive deluge, a great flood that will sweep the face of the earth. Oh, wow, 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 the whole world is going to perish. Oh, wow, 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 what a conspiracy theory. Oh, Noah, you are, out of your mind. You are doom and gloom prophet. You are a conspiracy theorist. Would not people be talking all those kind of bad things about Noah? Tell me. He
he was all by himself, a lone ranger preaching the truth of the Almighty. And he kept doing it. 120 years. How much ridicule, how much scorn, how much mockery he endured. Maybe there were times during those 120 years when there were fights in his own home, when his own sons, were at the point of rebelling against their own father. Maybe his wife was asking him during the bedtime, are you really serious that massive flood is going to come? We never even heard of any kind of rain. But Noah kept on doing what God commanded him to do. 120 साल तक नूह की बातें बकवास लगी लोगों को, जैसे आज भी बहुत से इंटेलेक्चुअल क्रिश्चियन है ना, प्रॉस्पेरिटी प्रीचर, मोटिवेशनल प्रीचर, बढ़िया बढ़िया जुमले प्रीच करते हैं। वो जुमले उठाते हैं किसी की मिनिस्ट्री से, अमेरिका से, उन जुमलों को कॉपी पेस्ट करते हैं। कितना विचक्राफ्ट है क्रिश्चियनिटी में। देखिए, आज ही मैंने देखा किसी ने एक पिक्चर डाली है, उसके अंदर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स और यूरो और स्टर्लिंग दिखाए गए हैं, और एक अफ्रीका का पादरी कह रहा है, आई डिक्री दिस इज कमिंग इनटू योर लाइफ दिस मंथ। देखिए कितनी एब्सोल्यूट ग्रीड ड्रिवन लोग हैं ये, अंदर से ग्रीड से भरे मूर्ति पूजक लोग हैं ये। वो डॉलरों की बड़ी बड़ी तस्वीरें देख के फट टाइप कर रहे हैं, आमीन आमीन आमीन, बड़ा आमीन, बड़ी बरकत। ये बाइबल है भाई, पढ़ो। ये बाइबल सीखी आप लोगों ने, ये देख रहे हो कलाम खुदा का, रैंडमली डिक्रियां कर रहे हो, प्रोफेसी, आई डिक्री दिस फॉर यू, आई डिक्री दैट फॉर यू। हाउ कैन यू टेक सच अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर of decreeing somebody's bright future, somebody's glorious fate? You don't even know what kind of life that person is living. आप कैसे डिक्री कर रहे हो भाई? आपको किसने ऑथोराइज किया है? क्या आपने कोई मैंडेट लिया है हेवन से, डायरेक्ट मिला आपको? You fasted 40 days, you sat in his presence for such a protected period of time, you walked with him, you were lifted up in heaven, you were given a vision, you were translated into his glorious presence, he gave you that vision। और just randomly कोई बोल रहा है, अमेरिका की कोई प्रीचर बोल रही है, आप भी चेप करते जाओ, अफ्रीका का कोई फेमस पादरी बोल रहा है, आप भी चेप करते जाओ। कितना विचक्राफ्ट चल रहा है। फिर लिखा होता है ये प्रोफेसी भेजी, जितने लोगों ने भेजी उनको $1 मिलियन की ब्लेसिंग मिल गई, किसी ने नहीं भेजी उसका बहुत बड़ा लॉस हो गया। देखिए क्या ये क्रिश्चियनिटी है? बताइए मुझे, बताइए आप। वो तस्वीरें देख के आमीन आमीन लिखते हो आप। शर्म आती यार मुझे कि आप लोगों को बाइबल जरा भी नहीं मालूम, और आप किस यहोवा परमेश्वर की औलाद हो। इससे तो बेहतर है आप हॉरोस्कोप देखा करें, ज्योतिषियों के पास जाया करें, तो बेटर है आपके लिए। क्योंकि प्रभु भी यही कहते हैं, प्रभु कहते हैं या तो गर्म हो जाए या ठंडा हो जाए। कितना परमेश्वर के कलाम से दूर हैं लोग। कई लोग मैं देखता हूं डिक्री करते हैं, आई डिक्री दिस। आपको मालूम है डिक्री करना कितनी बड़ी बात है? डिक्री राजा करता है, किंग करता है डिक्री, और डिक्री तब की जाती है जब डिवाइन काउंसिल में कोई फैसला लिया जाता है। जो यहोवा परमेश्वर के प्रोगेटिव हैं, यहोवा परमेश्वर के राइट्स हैं, उनको अपने हाथ में आप ले लेते हो। आप जानते नहीं हो कि उन स्पिरिचुअल फिनोमेना वो कितने गहरे हैं, कितनी डीप बातें हैं, बस आप कॉपी पेस्ट मारते जा रहे हो बिना जाने हुए उनको। और आपके ऐसा करने से श्रद्धालु जो आपके बड़े खुश हो रहे हैं, वो जो श्रद्धालुओं के पास जा रहा है ना, जो आमीन आमीन लिखते जा रहे हैं, वो बहुत खुश हो रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि $1 मिलियन आ रहा है मेरे पास। ये विचक्राफ्ट है, ये सॉर्सरी है, ये जादूगरी है, और इसकी सजा देता है यहोवा परमेश्वर। ये ग्रीड है, समझ रहे हैं आप? कावचसनेस है ये। इस कावचसनेस को कुलिस्सियों की पत्री 4 अध्याय के 3 वचन से पढ़िए। प्रेरित पौलुस इसे मूर्ति पूजा बता रहा है। ये कावचसनेस जो है ना आपके अंदर,
डॉलरों की तस्वीरें देख के आमीन आमीन लिखने की, पाउंडों की तस्वीरें देख के आमीन आमीन, गाड़ियां देख के, बंगले देख के, ये प्रचारी हैं, झूठे झूठे प्रचारी जो लोगों को ऐसे डिसीव कर रहे हैं। और वचन में लिखा है इनका अंत आ चुका है। पढ़ के देख लीजिए यहूदा की पत्री। Their punishment has already arrived because they are deceiving God's people and turning them into greed. Prosperity gospel के एक सेगमेंट, एक ऐसा सेगमेंट है जिसने लोगों के अंदर ग्रीड पैदा किया है, लालच पैदा किया है। और ये ग्रीड जो है ये मूर्ति पूजा है। आप ये मत सोचिए कि दूसरे लोग मूर्ति पूजा करते हैं, आप क्रिश्चियन लोग ज़्यादा कर रहे हो, अन्य जातियों से भी ज़्यादा कर रहे हो। सुनिए क्या लिखा है कुलिस्सियों की पत्री में। कुलिस्सियों की पत्री 4 अध्याय, पहले मैं पढ़ता हूँ आपके लिए 3 कुलिस्सियों 3 अध्याय, कोलोशियंस चैप्टर नंबर 3। और मैं कोलोशियंस चैप्टर नंबर 3 की आपके लिए पढ़ता हूँ 5 वचन। कोलोशियंस 3 एंड वर्स नंबर 5। सुने क्या लिखा है यहाँ पे। मोटिफाई देयरफॉर योर मेंबर्स विच आर अपॉन द अर्थ, fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence and covetousness, which is idolatry. पढ़ें क्या लिखा है यहाँ पे। एंड covetousness which is idolatry. covetousness क्या है? लालच। जो देखते हैं ना तस्वीरें बनी हुई ऐसे डॉलरों की, पाउंड की, बंगला बना हुआ है और गाड़ियाँ बनी हुई हैं, और वहाँ पे लिखता है गॉड इज़ गोइंग टू गिव यू दिस इन दिस मंथ, आई डिक्री, एंड यू आमीन लिखें, रिसीव इट। ये रिसीव करना ऐसे नहीं होता, ये रिसीव करना कबाला है, जादूगरी। आपको मालूम कबाला क्या है? कबाला का मतलब ये रिसीव करना, डार्क दुनिया, अंधकार की शैतानी दुनिया। तो नू जो है, जिसके विषय में मैं आपको बता रहा था, 11th चैप्टर ऑफ हिब्रूज, इब्रानियों 11 में वापस लौटिएगा। इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय। हालेलुया। तो नूह क्या करता है? हालेलुया। प्रिपेयर्ड एन आर्क टू सेव हिज हाउस एंड ही कंडेम्ड द वर्ल्ड। हालेलुया। 7 वचन पढ़ें, इब्रानियों 11 का 7। बाय फेथ नोआ बीइंग वार्न्ड ऑफ गॉड, he was warned by God of the things yet not seen. He never saw anything, but God just warned him, and he believed God. And he was moved with great fear. This man walked in the fear of the Lord. He began to obey the Lord. Hallelujah. He just started obeying the Lord. He started obeying the Lord by building a great massive ark. Thereby he saved his house and he condemned the whole world. उसने पूरी दुनिया को कंडेम किया, क्योंकि दुनिया उसे कंडेम कर रही थी पहले 120 साल। जब वो कह रहा था जल प्रलय आ रही है, सब कुछ नाश हो जाएगा, तो दुनिया उसे कंडेम कर रही थी। हालेलुया।